वेल हमारे पास क्वेश्चन है चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन एंड देन वी हैव टू एवेल्यूएट दिस इंटीग्रेशन. ओके, तो हाउ वी विल change the order? For this you have to see this integration. So first in this integration, first we have to integrate with respect to y, then x, but after changing the order it will become dx dy. It means first we have to integrate it with respect to x, then y. Okay, now see limit. So first limit is for y and second is for x. Okay, so from the given integration we can say that x is varying from 0 to 1 and y is varying from x squared to 2 minus x. This is called lower limit and this is called upper limit. Okay, then what we have to do, we have to graph this region. Okay, how we will graph it? This is x axis and this is y axis. Okay, see this. So we have to plot these two graph, four graph. X is equal to 0, x is equal to 1, y is equal to x square and y is equal to 2 minus x. As we all know, y is equal to x square is a parabola like this. This is y is equal to x square and y is equal to 2 minus x. This is a straight line. Okay, when you will put x is equal to 0, then y will become 2 minus 0, that is 2. Okay, this is too late. And when you will put x is equal to 2, then it will be 2 minus 2, that is 0. So this point is 0 comma 2. When you will put x is equal to 0, then y will become 2, and when you will put x is equal to 2, then y will become 0. This point is x is equal to 2, y is equal to 0. Okay, so this line is y is equal to 2 minus x. Then find intersection point. So finding intersection of y is equal to x square and y is equal to 2 minus x. What we are doing? We want to find these points. Okay, for this we have to solve these two equations simultaneously. Okay, how we will solve these two equations? X square is equal to 2 minus x, because left hand side is y, both are equal, hence right hand side will also be equal. Then this equation will become x square minus x, plus x minus 2 is equal to 0. Okay, ये माइनस एक्स इधर आके प्लस एक्स हो जाएगा और 2 माइनस 2 हो जाएगा. तो यू कैन गेट वैल्यू x plus 2 into x minus 1 is equal to 0. That means x is equal to minus 2 and 1. X is equal to minus 2 or 1. For x is equal to minus 2, y will become minus 2 का whole square, that is 4, and 1 का square 1. So this point is nothing but minus 2 comma 4, and this point is 1 comma 1. X is equal to 1, y is equal to 1. Okay, now we have to draw x is equal to 0. What is x is equal to 0? Y axis is itself x is equal to 0. Y axis का equation जो होता है क्या होता है? x is equal to 0 and x is equal to 1 will be a straight line parallel to y axis passing through this point, because this is x is equal to 1. This is x is equal to 1 and this is x is equal to 0. So now we have the region 0 to 1 and x square
to 2 minus x, that is this reason. Okay, now you have to change the order of integration. Okay, तो पहले इंटीग्रेशन का ऑर्डर क्या है, dy dx. अब हमें ऑर्डर क्या चाहिए, dx dy. ओके, तो आफ्टर चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, एक्स वाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, dx dy. अब यहाँ पे लिमिट किसका रखना पड़ेगा हमें, x का, क्योंकि पहले हम किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, x के रेस्पेक्ट में. अब हमें देखेंगे, हमें देखना है कि x कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है. तो x कैसे वेरी करता है, लेफ़्ट टू राइट वेरी करता है. तो जब हम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो हमें इस रीजन को दो पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा. क्यों, बिलो दिस लाइन x varies from this point to this point, यानी this point is on this graph and above this line x will vary from y axis to this graph. ओके, तो नेचर जो है बिलो दिस लाइन डिफरेंट है x का, above दिस लाइन डिफरेंट है. यहाँ पे जो चेंजेस आ रहे हैं कैसे आ रहे हैं, 0 टू दिस पॉइंट, और यहाँ जो आ रहा है 0 टू दिस पॉइंट, जो कि इस लाइन पे. ओके, तो ये हमारा पूरा इंटीग्रेशन दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगा. एक पार्ट में जो हमारा y वेरी कर रहा है, कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, इस लाइन के नीचे y कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 0 टू 1. तो y 0 टू 1. और x कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, ऐसे वेरी कर रहा है ना x. तो इस एक्सिस पे, y एक्सिस पे x 0 होता है, और यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी, ये इस लाइन पे, इस ग्राफ पे ये पॉइंट लाई कर रहा है, दिख रहा है ना, इस पॉइंट, ये पॉइंट जो है इस ग्राफ पे लाई कर रहा है. दैट मीन्स इसको अगर हम x के टर्म में लिखें तो क्या हो जाएगा, x इजिकल टू रूट वाई. माइनस क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होता है ना. अगर हम इस साइड का देखेंगे ग्राफ तो कैसे लिखेंगे इसको, x इजिकल टू माइनस रूट वाई, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में x निगेटिव होता है. तो ओके, तो ये कैसे वेरी कर गया, 0 टू रूट वाई प्लस देन बहुत ही केयरफुली देखना है यहाँ पे. तो अब ये पॉइंट क्या था, 0,2 था, क्योंकि ये पॉइंट क्या था, 2,0. तो अब y कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है इस रीजन के लिए, 1 टू 2. तो y वेरी कर रहा है 1 टू 2. ओके, और x वेरी कर रहा है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक. तो ये क्या हो जाएगा, 0 टू ये पॉइंट इस लाइन पे लाई कर रहा है. तो अगर y इक्वल टू 2 माइनस एक्स है तो इसको कैसे लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 2 माइनस वाई. तो इस रीजन के लिए x जो वेरी कर रहा है वो 0 टू 2 माइनस वाई वेरी कर रहा है, 0 टू 2 माइनस वाई. ओके, अब हमें इसी इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है. तो पहला काम क्या था हमारा, पहला टास्क था ऑर्डर चेंज करना है. तो हमने ऑर्डर चेंज कर दिया. पहले क्या था ऑर्डर, dy dx, अब dx dy. ओके, ओके, तो इसे कॉपी करिए. तो ओके, तो क्वेश्चन क्या था, ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन हमें चेंज करना था. ठीक है, तो हमने ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज किया. अब इसे इवेलुएट करना है. सेकेंड पार्ट क्या है, इवेलुएट करना है. ओके, तो अब देखते हैं कैसे इवेलुएट होगा ये. सबसे पहले हमें x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है. किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, क्योंकि फर्स्ट इंटीग्रेशन क्या है, dx है.
तो जब x के रेस्पेक्ट में से इंटीग्रेट कर रहे होंगे तो y कांस्टेंट माना जाएगा। तो y कांस्टेंट हो गया, x का इंटीग्रेशन क्या होता है x स्क्वायर बाई 2 और लिमिट ऑफ x क्या है 0 टू रूट y, ओके dy। अगेन इन सेम वे it will be y x square by 2, but this time limit of integration is 0 to 2 minus y dy, okay। now put the limit, तो पहले अपर लिमिट रखेंगे तो x की जगह रूट y रखेंगे तो रूट y का स्क्वायर y हो जाएगा, y बाई 2 माइनस 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ओके। देन सिमिलरली यहाँ पे भी पहले अपर लिमिट रखना है हमें, तो 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस 0 डी वाई। नाउ दिस इज वाई स्क्वायर बाई 2 डी वाई प्लस, एंड दिस इज आफ्टर सिंप्लीफिकेशन दिस विल बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर देना है यहाँ पे। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ओके। अब तो कुछ करना ही नहीं, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा वाई क्यूब बाई 6 0 to 1। इसे अभी और सिंप्लीफिकेशन की ज़रूरत है, तो 4y, इसे 2 को बाहर कर लेते हैं, तो 4y प्लस वाई क्यूब माइनस 4y स्क्वायर डी वाई। तो अपर लिमिट रखेंगे y 1 क्यूब अपॉन 6 माइनस 0 प्लस 1 बाई 2 4 वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस वाई क्यूब का इंटीग्रेशन कैसे होता है पावर 1 इंक्रीज कर देंगे और इसी से डिवाइड कर देंगे 4 वाई क्यूब बाई 3 1 to 2, ओके। तो दिस इज 1 बाई 6 प्लस 1 बाई 2 4 2 और 4 कैंसिल होगा तो कितना हो जाएगा 2। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर प्लस 1 बाई 4 2 4 माइनस 1 4 4 बाई 3 2 क्यूब माइनस 1 क्यूब, ओके। तो 1 बाई 6 प्लस 1 बाई 2 4 माइनस 1 3 3 2 6 प्लस 16 माइनस 1 15 बाई 4 माइनस 8 माइनस 1 7 7 4 28 डिवाइडेड बाई 3, ओके। आफ्टर सिंप्लीफाइंग it will become, so now it is very easy to simplify it, so we have answer directly we can write the answer, this is 3 by 8, okay। Thank you.